Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. So let's start with set number 5 of this particular playlist. First, pause the video, try to on your own and then proceed with the video solution. So this particular set I've taken from previous year's MCAT and set is a puzzle-based set which is on arrangement. And the set says 5 students named A, B, C, D and E are in 5 different standards from standard 1 to standard 5 in no particular order. These students participated in an event conducted over 5 days. Every day, 5 different questions in mathematics, one question each at the level of difficulty corresponding to the syllabus of standard 1 to standard 5 are kept on the table. Students are sent on the table one by one and they pick a question out of the question placed on the table subject to the following rules. Rule number one, on day 1, day 3 and day 5, the students are allowed to search through the questions available on the table and they can pick any single question of their standard or below. However, if that question is not available because someone else has picked it and as a consequence it has been removed from the table, they pick any random question to solve. Rule number two, on day 2 and day 4, the students are not allowed to search through the questions available and they have to pick only one question randomly. Once a question is picked by a student, that question is removed from the table. The student attempt to solve the question picked from the table, they can solve question corresponding to the level of difficulty of their own standard or below. That is to say, the student in standard 1 solves only the question from standard 1. However, the student in standard 2 solve the question of standard 1 as well as standard 2 and so on. The table 1 shows the order in which the students were sent to the table on different days. The table 2 shows the information on whether the question picked up by the student on different days could be solved or not. For example, A, B, and D solved their questions on day 1, while C and D did not solve their question on day 1. Other entries in the table are to be similarly interpreted. It is known that E is not from standard 1. अपने को दो अलग अलग टेबल भी दिया हुआ है, ए पर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तब फिर यहाँ पे दिमाग लगाते हैं. Question number one, the student of how many of the 5 students can be uniquely identified? Each of the 5 students picked up one question on each of the 5 days. Thus, there are 25 student combination. Out of these 25 student days combination, how many combination can be uniquely identified? Who among the following is a student of standard 4? Who among the following picked up a question for standard 2 on day 2? Who picked up a question for standard 4 on day 1? एक पजल सेट जिसमें कि क्या हो रहा है कि 5 स्टूडेंट हैं और वो 5 अलग-अलग दिन किसी ऑर्डर में आ रहे हैं एंड दे आर आंसरिंग द क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन टेबल पे पड़ा है और वो 5 क्वेश्चन हैं. अब क्वेश्चन कौन से हैं? क्वेश्चन क्लास 1 से लेके क्लास 5 की लेवल ऑफ डिफिकल्टी के क्वेश्चन है जिसमें कोई ऐसा बच्चा जो क्लास 1 का है इज एबल टू आंसर क्लास 1 के क्वेश्चन, क्लास 2 वाला बच्चा कैन आंसर 2 एंड 1 के क्वेश्चन, 3 वाला बच्चा कैन आंसर 3 4 सॉरी 3 2 1 के क्वेश्चन, 4 वाला बच्चा कैन आंसर 4 3 2 1 के क्वेश्चन, 5 वाला बच्चा कैन आंसर क्लास 5 4 3 2 1 के क्वेश्चन. ठीक है. अपने को दो अलग अलग टेबल नहीं है. पहले टेबल में दिखा रहा है कि हर दिन वो जो 5 लोग हैं वो किस ऑर्डर में आते हैं और दूसरा टेबल ये दिखा रहा है कि ABCDE ने क्या वो क्वेश्चन को आंसर कर पाए या ना कर पाए, ये दिया हुआ है. ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. मैंने क्या करा हुआ है, दोनों टेबल को मर्ज कर दिया. दोनों टेबल को मर्ज करके एक ऐसा टेबल बना दिया. बेसिकली कुछ ऐसा नया नहीं करा है. जस्ट दैट आई added the status कि day 1 को A was able to answer or not, B was able to answer or not, C was able to answer or not and so on. ठीक है. एंड इसके बाद मैं चीजों को लेके जाता हूँ. द फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज कि E इज नॉट फ्रॉम स्टैंडर्ड 1, यानी कि ऐसा ले लेते A B C D और E. ई जो है क्लास 1 का नहीं है. अगर वो क्लास 1 का नहीं तो प्रॉब्ली वो रिमेनिंग क्लासेस में से किसी एक का होने वाला, यानी कि वो 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, 5 का हो सकता है. अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. जैसे क्लास 1 का बच्चा वुड हैव बीन एबल टू क्लास 1 का आंसर, 2 का बच्चा 2 और 1 का बाकी वो नहीं कर पाएगा, 3 का बच्चा 3 2 1 का आंसर 4 और 5 का नहीं कर पाएगा, 4 का बच्चा कैन आंसर 4 3 2 1 वाला क्वेश्चन बट क्लास 5 वाला नहीं कर पाएगा, क्लास 5 का बच्चा 5 4 3 2 1. यानी कि क्लास 5 का एक ऐसा बच्चा होगा जो कि हर दिन उसको कुछ भी क्वेश्चन मिला ही इज एबल टू आंसर. ये समझ पा रहे हो? बेसिकली क्लास 5 का बच्चा ऐसा है ना, उसको कुछ भी लेवल ऑफ डिफिकल्टी मिलेगी ही इज एबल टू आंसर. वो 5 का हो, चाहे 4 का हो, चाहे 3 का हो, चाहे 2 का हो, चाहे 1 का हो. ठीक है. अपने को टेबल नंबर 2 पे ध्यान दो. तो कोई ऐसा बंदा जो कि पांचों दिन ही इज एबल टू आंसर, तो वो कौन है? वो एकमात्र बी ही आपको मिलेगा. यानी कि ए पे देखो 9 आ रहा है, बी का पांचों ऐसा आ रहा है, सी का 1 9 आ रहा है, डी का 1 9 आ रहा है, ई का 1 9 आ रहा है. यानी कि अपने को क्या पता है कि बी एकमात्र ऐसा है जो कि पांचों दिन आंसर कर रहा है और ये तभी पॉसिबल है जब बी अपना क्लास 5 का होगा.
इसका मतलब ये भी है कि ई जो है क्लास 5 का भी नहीं है, बिकॉज हर बंदा एक ही क्लास का होने वाला है, तो E1 का भी नहीं है, ये तो गिवन है, और 5 का भी नहीं है, ये पता चल गया। ठीक है, लेट्स यूज द टेबल नंबर 1 और फिर वैसे चलते हैं, बिकॉज टेबल नंबर 1 में क्या पता, ऑर्डर पता, और ऑर्डर के अराउंड अपने को रूल पता है। रूल क्या थे, अगर 1 3 5 में आओगे तो आपके पास प्रेफरेंस है, और 2 और 4 में आओगे तो आपके पास प्रेफरेंस नहीं, आपको रैंडम क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। अब 1 3 और 5 में ऐसा होने वाला है कि सपोज मनवीर है क्लास 1 का बच्चा और पहली बार जा रहा है, तो ऑब्वियसली मनवीर क्लास 1 का ही क्वेश्चन पिक करेगा, या मनवीर क्लास 2 का बच्चा, तो मनवीर कैन पिक 2 और 1 में से कुछ एक का क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही डे 1 को क्या हुआ होगा, ए जो भी क्लास का है उसने अपनी क्लास के बराबर या उससे नीचे की चीजों को का क्वेश्चन उठाएगा, दैट इज व्हाई ही इज एबल टू आंसर। सेम इज विद द बी, बट सी के साथ ऐसा नहीं है। सी क्या करा, आंसर नहीं कर पाए। अब सी अगर आंसर नहीं कर पाए, ठीक है, तो मतलब सी को कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जो कि उसकी क्लास से ऊपर का क्वेश्चन है। सी की क्लास क्या हो सकती है, अगर क्या हम ये फिगर आउट कर पाएंगे क्या, सी की क्लास 1 नहीं हो सकती, सॉरी सी की क्लास 5 नहीं हो सकती, सी की क्लास 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। यानी कि यहां तक अगर ध्यान दो, सी की क्लास के बारे में अगर हम बात करें, सी तीसरे नंबर पे एंड स्टिल इज नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन। तो सी क्लास 5 का नहीं था, अगर ये क्लास 4 का होता, ठीक है, तो यार कुछ भी केस में ही वुड हैव बीन एबल टू आंसर। ठीक है, मतलब ऐसा होता ना कि यार पहले दो वालों ने कुछ भी पिक किया है, पहले दो वालों ने 5 4 3 2 और 1 में से कोई भी दो क्वेश्चन पिक किए हैं, तो रिमेनिंग 3 में से अगर ये क्लास 4 का बच्चा है तो ही वुड हैव बीन एबल टू आंसर, लेकिन ये आंसर नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर ये क्लास 3 का बच्चा होता, तब भी इन 5 में से अगर दो हटे हैं तो कोई 3 भी बचे, तो इन एनी केस वो 3 2 1 तो आना ही आना है। ठीक है, अगर वो 3 2 1 का होता तो ही वुड हैव बीन एबल टू आंसर, बट सी आंसर नहीं कर पाए, यानी कि सी क्या हो सकता है, या तो क्लास 1 का या तो क्लास 2 का है। ठीक है, या और ऐसा हुआ होगा कि मान लो इसको ये क्लास 2 1 का यहाँ पे 5 4 3 बचा है, मतलब वर्स्ट सिचुएशन ये एक बन सकता था। ठीक है, कि मतलब इस जगह पे आपके पास 3 क्वेश्चन थे 5 4 3 वाले, एंड सी जो है क्लास 1 और 2 का बच्चा है, ही वाज नॉट एबल टू आंसर। चलो डी के बारे में ऐसे ही दिमाग लगाते, डी चौथे नंबर पे ही वाज एबल टू आंसर। ठीक है, डी का चौथे नंबर पे, तो डी के को क्या हो सकता है, अगेन ये भी 1 का हो सकता था, 2 का हो सकता था, 3 का हो सकता था, 4 का हो सकता था, ये 5 का नहीं होगा बिकॉज 5 का वी हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड। ठीक है, पर डी ने आंसर कर दिया है, डी ने आंसर किया है, तो यानी कि डी को क्या मिला होगा, अपनी क्लास का कुछ क्वेश्चन या अपनी से बड़ी क्लास का क्वेश्चन। ठीक है, यार ये चीज को थोड़ा सा सोच पाना मुश्किल है। ठीक है, मतलब डी को अपनी क्लास का अपनी क्लास से कम का क्वेश्चन मिला हुआ, तो यार ये थोड़ा यहाँ पे हो सकता है डी क्लास 1 का हो और उसको यही मिल गया, डी क्लास 2 का हो तो 2 और 1 का मिल गया, 3 का हो 3 2 1 का मिल गया, 4 का हो यहाँ मिल गया। तो ये थोड़ा सा फिगर आउट करना मुश्किल है। चलो ई के लिए कुछ कह पाएंगे, नहीं ई के लिए तो कुछ भी नहीं कह पाएंगे, बिकॉज ये लास्ट प्लेस पे आ रहा और आंसर भी नहीं कर पा रहा। ठीक है, लेट्स जंप टू द डे टू। डे टू में देखते हैं क्या कर सकते हैं। डे टू के बारे में ऑब्जर्व करो तो क्या हुआ, बी ने सही आंसर करा बिकॉज बी तो क्लास 5 का बच्चा है, बाकी सब ने गलत आंसर करा है। ये सिचुएशन कब पॉसिबल होगी, ये सिचुएशन तब पॉसिबल होगी कि यानी कि हर बंदे को उसकी क्लास से बड़ी क्लास का क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि क्लास 4 वाले बच्चे को क्लास 5 का क्वेश्चन पूछा गया होगा, क्लास 3 वाले बच्चे को क्लास 4 या क्लास 5 में से किसी एक क्वेश्चन को पूछा जाएगा। सिंस क्लास 5 का क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बाय क्वेश्चन कैंडिडेट नंबर 4, तो इससे क्या पूछा जाएगा, फोर्थ क्लास वाला, यानी कि +1 होने वाला है। अच्छा, सेकेंड क्लास वाले को क्या पूछा जा सकता था, 3 4 5 में से कुछ, क्योंकि 4 और 5 हमने ऑलरेडी एलोकेट कर दिया है, तो इससे क्या पूछा गया होगा, थर्ड क्लास का क्वेश्चन। यानी कि फर्स्ट क्लास वाले को क्या पूछा गया होगा, सेकेंड क्लास का क्वेश्चन, एंड फिफ्थ क्लास को क्या पूछा गया होगा, फर्स्ट क्लास का क्वेश्चन, यानी कि बी को क्या पूछा गया होगा, फर्स्ट क्लास का क्वेश्चन, एंड बाकियों को उनकी स्टैंडर्ड से +1 का क्वेश्चन पूछा गया। ये चीज हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो डे टू को तो हमने कर लिया, बिकॉज डे टू इज ऑल अबाउट रैंडमनेस, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हम चीजों को फिगर आउट नहीं कर पाएंगे, बट वी हैव आइडेंटिफाइड द पैटर्न कि भाई ऐसा हो रहा है कि सबका +1 आएगा, मतलब इफ वी गेट टू नो अबाउट द क्लास ऑफ ABCDE, तो हमें पता चल जाएगा कि इनसे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, बस उसमें अपन 1 ऐड करते जाएंगे। डे 3 पे चलते हैं, डे 3 पे क्या हो रहा है, अगेन वो तो डे 3 पे आपको डे 3 पे अपने को क्या हो रहा है, डे 3 पे अपने पास प्रेफरेंस का ऑप्शन है, मैं ये जगह बना लेता हूँ बिकॉज अपने को पैटर्न पता है। ठीक है, डे 3 के पे अपने को पता है कि प्रेफरेंस है, तो प्रेफरेंस में ऐसा हुआ कि सी और डी आए एंड दे वर एबल टू आंसर, और ई की आ रहे आते आते बारी वो आंसर नहीं कर पाया। ठीक है,
ई जो है आंसर नहीं कर पाया। ई कौन सी क्लास का हो सकता है? 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, ऐसे ही कुछ होने वाला है, बिकॉज 1 और 5 का नहीं होगा, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ए क्लास 2 का होगा, क्लास 3 का होगा, क्लास 4 का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस जगह आते आते, इस जगह आते आते थोड़ा ध्यान देना, इसके पास कौन से 3 क्वेश्चन है जो कि पूछे गए होंगे, पूछने के लिए बाकी होंगे। एक तो क्लास 5 का क्वेश्चन होगा, बिकॉज समझना सी और टी दोनों ही क्लास 5 वाले नहीं है, तो इन्होंने क्लास 5 का क्वेश्चन उठाया ही नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ई से क्या हुआ, अपनी क्लास से बड़ी क्लास का कोई चीज पूछा गया है। अब वो क्या हो सकता है, एक तो 5 होगा ही होगा, इसके साथ क्या हो सकता है, 4 और 1 हो सकता था, ठीक है। 4 और 2 हो सकता था, ठीक है। 4 और 3 हो सकता था, ऐसा। या 5 और 3 और 2 हो सकता था, 5 3 और 1 हो सकता था, 5 2 और 1। यानी कि मैक्स टू मैक्स ये 6 पॉसिबिलिटी है जो कि यहाँ पे फंसनी चाहिए थी इस जगह पे आने के बाद, क्योंकि अपने को पता है 5 तो आएगा ही आएगा, बिकॉज इन दोनों ने 5 का नहीं पूछा है और ये दोनों आंसर कर पाए, यानी कि ये दोनों ने अपनी क्लास या अपनी क्लास से नीचे वाले क्वेश्चन पिक किए थे और दोनों क्लास 5 के हैं नहीं। यानी कि यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 हैज नॉट बीन आस्क्ड। तो इन्होंने 541 532 ये वाले 6 केसेस हैं जो कि इन्होंने बेसिकली पूछे, पॉसिबिलिटी में ये फंसे होंगे। अब थोड़ा यहाँ पे ना दिमाग लगाते हैं, ई अगर क्लास 4 का बच्चा होता, थोड़ा समझना, अगर ई क्लास 4 का बच्चा होता तो ई वुड हैव बीन एबल टू आंसर। ये देखो 541 में भी कर पाता, 42 में भी कर पाता, 43 32 31 32 सब केस में कर पाता। यानी कि मैंने यहाँ से क्या कंक्लूड करा, ई जो है क्लास 4 का बच्चा नहीं है, ठीक है। फिर से समझाता हूँ, अगर ई क्लास 4 का होता तो यार नोटिस करो ना, यहाँ पे 541 में ई वुड हैव बीन एबल टू आंसर और यहाँ पे वाई होना चाहिए। 542 में आंसर कर पाता, 543 में आंसर कर पाता, इधर वाले केसेस में भी आंसर कर पाता। अगर ई क्लास 3 का बच्चा है, ठीक है, अगर ई क्लास 3 का बच्चा है, स्टिल ही वुड हैव बीन एबल टू आंसर हर केस में। देखो यहाँ पे ई क्या करता, प्रेफरेंस में 1 ले लेता, 2 ले लेता, 3 ले लेता, या इनमें से कुछ एक ले लेता, बिकॉज डे 3 पे तो प्रेफरेंस अलाउड है ना, डे 3 पे तो प्रेफरेंस अलाउड है और इन्हीं 6 केसेस में से कुछ प्रेफरेंस उठानी होती। तो हर केस में मेरे को दिख रहा है अगर ये 3 वाला बच्चा होता तो ही वुड हैव बीन एबल टू आंसर, और यहाँ पे वो आंसर नहीं कर रहा है। यानी कि ई कौन है, क्लास 2 का बच्चा, यानी कि ई कौन है, क्लास 2 का बच्चा। अच्छा, यानी कि सेकंड क्लास का बच्चा। अगर ई सेकंड क्लास का बच्चा था, ठीक है, अब सेकंड क्लास का बच्चा है तो यानी कि ये केस नहीं पॉसिबल। अगर ये केस होता तो ई वुड हैव पिक्ड क्वेश्चन नंबर 1 एंड ही वुड हैव बीन एबल टू आंसर। ये भी नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 लेके काम कर सकता था, ये भी नहीं होगा क्योंकि 2 कर सकता था, ये भी नहीं होगा कर सकता था, ये भी नहीं होगा कर सकता था। यानी कि द ओनली पॉसिबिलिटी विच कैन ऑकर एट दिस पॉइंट इज 543। यानी कि ऊपर वाले दोनों केस के अंदर 1 और 2 पूछा गया था, ये भी हमें समझ आ गया, ठीक है। अब चलो थोड़ा जगह बना लेते हैं, इस चीज को कर लेते हैं। नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग वाज वेरी ट्रिकी, ठीक है, सोच पाना एग्जाम वाले फेज में तो मुश्किल है। मतलब ये एक ऐसा सेट है जिसने कभी सॉल्व कर रखा है, देन ओनली ही विल बी एबल टू फिगर आउट इन द एग्जाम पे, ठीक है। अगर ऐसा है कि आपने कभी ऐसा कुछ सेट नहीं कर रखा है तो आपके लिए बहुत मुश्किल है ये चीज़ को एग्जाम वाले फेज में गिवन टाइम पीरियड में सोच पाना, ठीक है। चलो ई के लिए वी हैव आइडेंटिफाइड कि ये सेकंड क्लास का बच्चा है, ठीक है। यहाँ पे केस हैज टू बी 543, यानी कि ऊपर वालों के लिए इट हैज टू बी 1 एंड 2। अच्छा, मेरे को यहाँ पे पता था कि सी का 1 और 2 में से कुछ एक होना चाहिए था, ये मैंने डे 1 पे निकाल रखा था। तो अब क्योंकि ई क्लास 2 का बच्चा मिल गया तो सी कौन होगा, क्लास 1 का बच्चा होगा, ठीक है। सी कौन है, क्लास फर्स्ट का बच्चा है, ठीक है। अगर सी क्लास फर्स्ट का बच्चा है, यानी कि यहाँ पे इसको सेकंड क्लास का क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, सी अगर क्लास फर्स्ट का बच्चा और ई सेकंड का बच्चा, यानी कि इसको थर्ड क्लास का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। डे 3 पे अगर ध्यान दो तो सी पहले प्लेस पे गया, सिंस सी इज फ्रॉम क्लास 1 तो इसने पहले ही क्वेश्चन उठाया होगा, ठीक है। मेरे को क्या पता था यहाँ पे क्या बाकी 1 और 2 बाकी है, अगर 1 और 2 बाकी है तो 1 हमने दे दिया, तो इससे क्या पूछा गया होगा, सेकंड क्लास का क्वेश्चन, एंड ही इज एबल टू आंसर। यानी कि डी कौन है, क्लास 2 का या 4 का बच्चा है, तो स्टिल ही इज एबल टू आंसर, ठीक है। अच्छा, थोड़ा आगे चलते हैं, मतलब यहाँ पे हमने क्वेश्चन का काफी हिस्सा निकाल दिया। मतलब सो फार आई एम एबल टू आइडेंटिफाई बी सी और ई का क्लास, ए और डी जो अभी भी पेंडिंग है। डी के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि डी जो है अब क्लास 2 का भी नहीं है और क्लास 1 का नहीं, प्रॉब्ली डी जो है क्लास 3 या 4 में से कुछ एक होने वाला है, ठीक है। लेट्स जंप टू द डे 4। डे 4 पे देखते हैं कि क्या हो सकता है। डे 4 पे अगर ध्यान दो, डे 4 पे ध्यान देते हैं। डे 4 पे अपने पास क्या है,
यहाँ पे सब कुछ यस 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 होते जा रहा है, ध्यान दो। सब कुछ यस होने का मतलब ये तभी पॉसिबल है जब सबको अपने रिस्पेक्टिव क्लासेस के क्वेश्चन पूछे गए हो, ये तभी पॉसिबल है। क्योंकि समझना, 5 वाला बंदा अगर 5 से कम वाला उठाएगा और 4 वाला बंदा उससे कम का उठाएगा, 3 वाला उससे कम का उठाएगा, 2 वाला उससे कम उठाएगा, तो 1 के लिए तो कुछ ना कुछ फंसेगा। यानी कि किसी एक ने अगर रायता फैलाया कि मैं छोटी क्वेश्चन वाला उठाने वाला हूँ, तो ऑब्वियसली किसी ना किसी के लिए वो इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। बट यहाँ पे किसी को इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, तो बाय दैट लॉजिक व्हाट आई कंक्लूडेड कि सबने रिस्पेक्टिव क्वेश्चन ही उठाए। यानी कि बी ने उठाया होगा क्लास 5 का क्वेश्चन, ई ने उठाया होगा क्लास सेकंड का क्वेश्चन, एंड सी ने उठाया होगा फर्स्ट क्लास का क्वेश्चन। मतलब बेसिकली रैंडम मिला तो इसको रैंडम यही मिला होगा। ठीक है, डे 5 पे चलते हैं। डे 5 पे अपने को पता है कि ई जो है, ई वॉज फर्स्ट प्लेस, एट फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट ऑर्डर में। तो यहाँ पे 2 और 1 में से कुछ भी एक होगा। ए के लिए यार डिटरमाइन कर पाना मुश्किल है यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज ए के बारे में अपने को कुछ भी नहीं पता। बी के लिए अगेन नहीं पता, सी के बारे में नहीं पता, डी के बारे में नहीं पता। सी के बारे में ये पता है कि क्लास 1 का बच्चा, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर ही कहीं पे किसी ने पूछ लिया होगा, दैट इज व्हाई इज नॉट एबल टू आंसर। चलो फटाफट से डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 को फिर से रिविजिट करते हैं और देखते हैं हम और क्या निकाल सकते हैं। डे 1 पे क्या है, ए वाई बी वाई सी एन डी वाई। तो यहाँ से सी का निकाल चुके हैं, ठीक है। सी का निकाल लिया, यानी कि सी कौन था, क्लास फर्स्ट का बच्चा था, और इसका क्लास फर्स्ट का क्वेश्चन इन दोनों में से किसी एक ने पूछा गया, पकड़ लिया था, मतलब ऐसा था। ठीक है। ऑल्सो डी के बारे में क्या कह सकते हैं, डी के बारे में पता था कि 3 और 4 है। ई के बारे में यार यहाँ पे थोड़ा फिगर आउट कर पाना मुश्किल है। इस पे जाते हैं, इस पे कर सकते हैं, बिकॉज इसके बाद ना अपने को काफी हद तक पता है। अपने को क्या पता है, ये 1 2 में से 5 4 3 होना चाहिए था। ठीक है। अब अपने पास क्या है, ए और डी के बारे में क्या पता है, ए कौन सी क्लास का होगा, 1 का, सॉरी 3 का, यहाँ क्लास 4 का। सेम इज फॉर डी, या तो क्लास 3 या तो 4 में से कुछ एक होने वाला है। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ई ने क्या करा, 5 4 3 था। ठीक है। 5 4 3 में से मतलब यहाँ पे ई ने कुछ एक क्वेश्चन लिया, 5 4 3 में से कुछ भी एक, एंड ही वाज नॉट एबल टू आंसर। तो यानी कि आगे क्या गया होगा, 5 या 4, 5 या 3, 4 या 3। ये 3 केसेस हैं जो कि पॉसिबल हैं आगे बढ़ने के लिए। ठीक है। अगर डी क्लास 4 का बच्चा है तो वो तीनों केसेस में डी तो यार आंसर कर पाता। बट यहाँ पे दिख रहा है, सॉरी ए के बारे में, ए के बारे में अपने को क्या पता है, अगर ए क्लास 4 का बच्चा होता, यहाँ पे समझना, अगर ए क्लास 4 का बच्चा है, ठीक है, अगर ए क्लास 4 का बच्चा है एंड ए वुड हैव बीन एबल टू आंसर, यहाँ पे ए तो यार आंसर नहीं कर पा रहा ना। यानी कि ए अगर क्लास 4 का बच्चा होता तो यार हर केस में ये आंसर कर पाता। यानी कि ए क्लास 4 का बच्चा नहीं है, यानी कि ए कौन है, क्लास 3 का बच्चा। एक चीज अपने को और मिल गई, अगर ए क्लास 3 का बच्चा है तो डी कौन सा होगा, क्लास 4 का बच्चा। ठीक है। अब ये चीज निकाल पाना बहुत मुश्किल। अगर आपने ये निकाल लिया तो इस सेट के अंदर कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि आपको लॉजिक वाइज यहाँ पता था कि डी को उसकी क्लास से बड़ी क्लास का क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि 5th क्लास का पूछा गया, यानी कि ए को यहाँ पे 4th क्लास का पूछा गया। यहाँ पे ए वॉज एबल टू आंसर, यानी कि इससे 3rd क्लास का पूछा गया। डी वॉज एबल टू आंसर, यानी कि 4th क्लास का पूछा गया। ठीक है। यहाँ पे पूरे पांचों के पांचों का मिल गया, यहाँ पे पूरे पांचों के पांचों का मिल गया। अच्छा, इस जगह पे सिंस आई नो कि भाई ए जो है कौन है, क्लास 3 का बच्चा है, तो यहाँ से मैं ये फिगर आउट कर सकता हूँ कि 3 वाला केस नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 3rd वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया होगा। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 5 और 4 में से कुछ एक होना चाहिए, क्योंकि ए कौन था, क्लास 3 का बच्चा था, ही वाज नॉट एबल टू आंसर। बी वाज क्लास 5 का बच्चा एंड ही वाज एबल टू आंसर। ठीक है। यानी कि डे 3 को मैं 3 लोगों के बारे में यूनिकली डिटरमाइन कर पा रहा हूँ कि उनसे कौन सी क्लास का क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है। और डे 5 ए के बारे में कुछ बता पाऊंगा क्या, नहीं, क्योंकि क्लास 3 का है तो इसने आंसर कर दिया, तो 3 2 1 कुछ भी हो सकता है। ठीक है। फॉर बी, यार ये तो क्लास 5 का है तो इससे तो कुछ भी पूछा जा सकता है। फॉर सी, ही इज नॉट एबल टू आंसर, सी क्लास 1 का बच्चा, तो यार इससे क्लास 1 से ऊपर की चीजें पूछी गई, ही इज नॉट एबल टू आंसर। डी लास्ट में गया एंड डी इज नॉट एबल टू आंसर, और डी कौन सी क्लास का है, क्लास 4th का बच्चा है। ये तभी पॉसिबल है जब डी क्लास 5 का क्वेश्चन इससे यहाँ पे पूछा गया है, एंड दैट इज व्हाई ही इज नॉट एबल टू आंसर। यहाँ पे देखना यार, ये पार्ट अपना आसानी से फिगर आउट किया जा सकता है। यानी कि डे 5 की बात करें तो एक जने के बारे में वी आर एबल टू डिटरमाइन। लास्ट डे 1 बचा हुआ है। डे 1 के बारे में ए वाई है, ए वाई के बारे में कैन वी से समथिंग, ए के बारे में पता है कि 3rd क्लास का है,
यानी कि ही इज एबल टू आंसर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे 2 और 1 आना चाहिए। अच्छा, 3 2 1 बेसिकली, 3 2 एंड 1। ठीक है, बी इज एबल टू आंसर, यानी कि यहाँ पे 5 से लेके 1 तक कुछ भी आ सकता है। सी इज नॉट एबल टू आंसर, सी कौन है, क्लास 1 का, यानी कि 5 से लेके 4 तक कुछ भी आ सकता है। ही वॉज एबल टू आंसर, यानी कि 4 से लेके 1 तक कुछ भी आ सकता है। ई वॉज नॉट एबल टू आंसर, यानी कि ई को 5 से लेके 3 तक कुछ भी आ सकता है। यानी कि डे 1 पे हमें 0 लोगों के बारे में यूनिकली पता चल पा रहा है कि वेदर दे वर एबल टू आंसर और। ठीक है, आई वुड रेट दिस एज अ डिफिकल्ट सेट, मतलब एग्जाम वाले फेज में इसको करना वुड बी अ ट्रैप, मतलब ये, मतलब इट वुड बी अ वेरी बिग मिस्टेक। आपको ये लास्ट रिजॉर्ट में होना चाहिए, मतलब मैं पहले 2-3 सेट आइडेंटिफाई करूंगा, वंस आई फील यार मेरे लिए सब हो चुका है, अब मेरे पास टाइम बचा हुआ है 10 मिनट का, तो मे बी आई ट्राई माई बेस्ट कि कर पाऊँ। ये तब होगा जब आपके पास कुछ फैमिलिटी हो इस टाइप ऑफ सेट को सॉल्व करने के लिए, तभी आप इसको फिगर आउट कर पाएंगे। ठीक है, लेट्स जंप टू द क्वेश्चन पार्ट, देखते हैं क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 बोला हुआ है कि, क्वेश्चन नंबर 1 बोला द स्टैंडर्ड ऑफ हाउ मेनी ऑफ द 5 स्टूडेंट कैन बी यूनिकली डिटरमाइन। ये तो यार पांचों का अपन कर पाए थे। ठीक है, each of the 5 student picked up a one question on each of the 5 players, thus there are 25 student days combination, out of these 25 student days combination how many combination can be uniquely identified। कितने कर पा रहे, 5 3 5 1, यानी कि 5 5 10 3 13 1 14, यानी कि 14 शुड बी दी करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ स्टैंडर्ड 4 का बच्चा, स्टैंडर्ड 4 का बच्चा कौन है, स्टैंडर्ड 4 का बच्चा अपना कौन है, ये तो डी है, यहाँ पे हमने हाईलाइट कर भी रखा था, यानी कि इट हैज टू बी ऑप्शन नंबर सी, डी होना चाहिए। Who among the following picked up a question for standard 2 on day 2, standard 2 on day 2 को standard 2, यानी कि किसने पिक करा है, सी ने पिक करा है, यहाँ पे दिख रहा है सी ने पिक करा है, यानी कि इट हैज टू बी ऑप्शन नंबर बी। Who picked up a question on standard 4 on day 3 को किसने पिक करा है, standard 4 को, day 3 को, यानी कि standard 4 का ए और बी में से किसी एक ने, यानी कि इट हैज टू बी ए और बी, ए बी सी बी डी, आंसर क्या होना चाहिए, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, हाँ, ए और बी में से कुछ भी, सी बी डी होना चाहिए आंसर। ठीक है, अगेन डिफिकल्ट सेट, बट लर्निंग के हिसाब से मस्ट ट्राई सेट है, आपको सीखना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, आई होप आप लोगों ने सिमकैट 1 लिखा होगा, आपके पास सेक्शनल स्कोर आ चुका है। एंड अगर आपने लिखा है, आज सेक्शन ओपन हो गया, डीएलआर का रिव्यू करना, आई वुड से 3 सेट जो करने वाले थे वो थे, पहला सेट आपका जहाँ पे नंबर क्रंचिंग करनी थी, 1601 से लेके 1616 तक का ईयर सेट करना था। सेकेंड सेट वुड बी दी पाई चार्ट वाला लास्ट सेट, थर्ड सेट वुड बी दी केसर टूरिस्ट वाला सेट, जिसमें कि अगेन 6-10 कंजिक्यूटिव वालों को नंबर्स को परसेंटेज को अरेंज करना था। उसको क्वेश्चन नंबर 1 से, उसके उस सेट के क्वेश्चन नंबर 1 से आप आसानी से कर सकते थे। ठीक है, आप मतलब आज क्योंकि रिव्यू के लिए ओपन हुआ है तो आप लोग उसको ट्राई करो। ठीक है, चलो कीप प्रैक्टिसिंग।